Hi learners, welcome back. Neha ma'am is again here with the new chapter of history, that is the rise of nationalism in Europe. Children, I hope you must have liked my previous video, that is tips and tricks to make your history subject an easy subject. I'll again share the link in my description box. You can go through it once again. Definitely it will help you. So let's begin with the chapter, that is the nationalism in Europe. Children, before starting this chapter, we need to understand the meaning of nationalism. What is nationalism? Nationalism means patriotic feeling, a devotion towards the nation. एक पैट्रियोटिक फीलिंग आना, देशभक्ति वाली फीलिंग आना. आपने देखा है कि जब हमने अपने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टडी किया था, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने किस चीज के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था? जस्ट फॉर द पैट्रियोटिक फीलिंग्स टुवर्ड्स द नेशन, devotion towards the nation. They all wanted democracy. They didn't want any kind of autocracy और आपका मोनार्की, उनको कुछ नहीं चाहिए था. इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था. तो वो क्या था? वो एक फीलिंग थी. कौन सी फीलिंग थी? देशभक्ति वाली फीलिंग थी, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था. सो अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन वी विल डिस्कस लेटर. लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. आपका जो चैप्टर है बहुत एक ब्यूटीफुल पेंटिंग से स्टार्ट होता है. दैट इज द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियोस पेंटिंग 1848. He prepared that painting in 1848, and at that time he was visualizing the nation states. Frederick Sorio was a French artist. वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे. उन्होंने पेंटिंग आपकी 1848 में बनाई थी. This painting consists of 4 aspects. The first aspect is the procession. The second aspect is the Statue of Liberty. The third aspect is the symbols of monarchy. Then the fourth is heaven in the sky. Children, let's begin with the first aspect. What Frederick Sourios wanted to see here through the procession. ये एक आप अपनी पेंटिंग देखें, उसमें आपको एक दिख रहा होगा कि एक लंबी सी लाइन जा रही है लोगों की. उसमें मेन भी है, विमेन भी है. उन्होंने अपनी अपनी कंट्रीज की ड्रेसेस पहन रखी है. उन्होंने फ्लैग्स भी ले रखे हैं अपने कंट्री के. वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें. चिल्ड्रन, एज वी नो, तो पहले ना कंट्रीज नहीं थी, कोई भी कंट्री नहीं थी. सब कुछ मर्ज था. स्पीकिंग पीपल रहते थे, लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल रहते थे, जिसमें मेन है, विमेन है, सारे एजेस के हैं. कोई सोशल क्लास नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. सब एक लाइन में जा रहे हैं, लॉन्ग क्यू में खड़े हुए हैं. और किसकी तरफ मार्च कर रहे हैं इन अ लॉन्ग ट्रेन? दे आर मूविंग, मार्चिंग टुवर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. व्हाई? टू पे और टू ऑफर होमेज. What is the meaning of homage over here? Homage means respect देना. तो वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं. When you see that particular queue, that long train, आप उसमें देखेंगे कि कुछ लोग, चाहे मैन है या विमेन है, वो लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुके हैं. Actually, they are from US and Switzerland. People from US and Switzerland, they have crossed the Statue of Liberty. You can see in the painting. It means they are already now nation state. Now US, the people of US and Switzerland are being followed by France. अब आप फ्रांस के लोगों को देखो, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास जस्ट पहुंचे हैं. It means soon they are going to be the nation state. And now French people were followed by Germany. Frederick ने उसी टाइम पर जर्मनी को एक नेशन स्टेट इमेजिन कर लिया था, विजुलाइज कर लिया था. एक इंडिपेंडेंट स्टेट उसने विजुलाइज कर लिया था. उन्होंने तभी बोल दिया था 1848 में कि जर्मनी विल बी, मीन्स ऑल कंट्रीज विल बी nation state. So US and Switzerland people, they have already crossed the Statue of Liberty. It means they are already now nation state. US people, Switzerland people were being followed by France people. Then France people were followed by Germany people. Then many more countries were there, right? आप देखो बहुत लंबी लाइन है. So this is the procession. The procession word
एग्जैक्टली मीन्स एक तरीके का जुलूस जिसमें सब एक लॉन्ग क्यू में जा रहे थे. where were they moving? They were moving towards the Statue of Liberty. For what purpose? To offer homage. वो homage देना चाह रहे थे, श्रद्धा, रिस्पेक्ट देना चाह रहे थे. So this is all about the first aspect that is. Second aspect is the Statue of Liberty. You can see that all people, they are moving in a queue towards the Statue of Liberty. Now what is that Statue of Liberty indicating here? वो हमको क्या बता रही है? See, आप देखो Statue of Liberty, आप देखेंगे पिक्चर में, उस पेंटिंग में देखेंगे. So that Statue of Liberty is carrying a torch of enlightenment in one hand, and in the other hand that Statue of Liberty has the charter. Now children, क्या बता रहे हैं? एक तरफ तो वो Statue of Liberty हमको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब हमको एनलाइटनमेंट मिलने वाला है, राइट. दूसरी तरफ वो चार्टर, वो जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि नाउ एक्चुअली द चार्टर मतलब होता है कोई भी एक रिटन डॉक्यूमेंट. तो उस चार्टर में सारे राइट्स मेंशन किए गए हैं. द चार्टर इज ओवर हियर, सी द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन. So the one in one hand, Statue of Liberty is carrying the torch of enlightenment, and on the other hand, the Charter of Rights. Now, third aspect is the Frederick Soddy are talking about the symbols of monarchy. What is symbol of monarchy over here? Children, see the picture, the painting. आप देखेंगे उस पेंटिंग में जगह जगह कुछ पीसेस पड़े हुए हैं, ब्रोकन पीसेस हैं. तो वो ब्रोकन पीसेस हमको ये इंडिकेट करे सून मोनार्की जाने वाली है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी. और क्या हो जाएंगे सारे स्टेट, क्या डिक्लेयर हो जाएंगे? ऑल स्टेट्स विल बी द नेशन स्टेट्स. ओवर हियर स्टेट्स मींस कंट्री. सारे कंट्रीज अब क्या होने वाली हैं? नेशन स्टेट बन जाएंगे. नाउ द फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ द पेंटिंग इज हेवन इन द स्काई. हेवन इन द स्काई मींस आप उस पिक्चर को देखें, अगेन उस पिक्चर को देखें, उस पेंटिंग को देखें, आपको आसमान में ना एंजल्स दिखाई दे रहे होंगे, आपको सेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, आपको क्राइस्ट दिखाई दे रहे होंगे. सो ओवर हियर फ्रेडरिक वांट्स टू से कि अब तो ऊपर भगवान भी हमको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अब आप लोगों को क्या मिलना चाहिए? अब आपको नेशन स्टेट. इवन नाउ गॉड वांट्स दैट एवरीबॉडी शुड गेट इंडिपेंडेंस. अब नेशन स्टेट्स हो जाना चाहिए. एंड दे आर टॉकिंग, ये जो हेवन इन द स्काई है, जो क्राइस्ट है, सेंट्स है, एंजल्स है, जो हमको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो ये सीन देख रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि नाउ देयर इट सिंबलाइजेस फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मींस एक सपोर्ट, म्यूचुअल सपोर्ट, एक आपस भाईचारा करके चलना है. तो अब तो ऊपर भगवान भी हमको ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब हमको क्या चाहिए? नेशन स्टेट चाहिए. So children, now let's move on to the next topic. The next topic is, अभी हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की थोड़ी सी बात करेंगे. जब हम पुराना जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, that was a very interesting chapter. So the French Revolution, वो एक लड़ाई थी नेशनलिज्म के लिए. सबके अंदर एक देशभक्ति वाली फीलिंग्स आ रही थी. अब चिल्ड्रन देखिए, कहीं पर भी अगर लड़ाई हो रही है, अब किस लिए हो रही है? फॉर द नेशन स्टेट. और नेशन स्टेट बनाने के लिए कॉमन आइडेंटिटीज का होना जरूरी है. चिल्ड्रन, हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था, कैसे वो पॉसिबल हुआ? एक्चुअली उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे, कुछ स्टेप्स, सम मेजर्स वर टेकन. क्योंकि एक नेशन स्टेट बनाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कॉमन आइडेंटिटीज. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड पर्पस. What were the measures taken to bring the common identities among the people? क्या स्टेप्स थे, क्या मेजर्स लिए गए थे कॉमन आइडेंटिटीज बनाने के लिए? सो लेट्स बिगिन विद द न्यू टॉपिक, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ नेशन स्टेट. अभी हम इतनी देर से नेशन स्टेट सुन रहे हैं, तो एक नेशन स्टेट्स के लिए क्या चीजें होना जरूरी है? व्हाट आर द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड? द फर्स्ट इज कॉमन आइडेंटिटीज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन स्ट्रगल. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया, हम लोगों की लड़ाई जो आज़ादी की थी, तो वो क्यों पॉसिबल हो पाई? क्योंकि हम सबका एक कॉमन आइडेंटिटी थी, हम इंडियंस थे सब, हमारा कॉमन हिस्ट्री रही है, हमारे सारे एंसेस्टर्स हैं, हमारी जो भी कॉमन हिस्ट्री मीन स्ट्रगलिंग हिस्ट्री रही है, हमने जो लड़ाई लड़ी है सबकी कॉमन है, राइट. और हमारा कॉमन स्ट्रगल रहा है. अब यही फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, आइडिया ऑफ नेशन की बात करें, तो इट स्टार्टेड इन 1789.
हमने देखा कि हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन 1789। वाई? क्योंकि लोगों के अंदर ना नेशनलिज्म वाली फीलिंग्स आ रही थी, लोगों के अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग्स आ रही थी, डिवोशन आ रहा था नेशन के प्रति, राइट? तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पॉसिबल हो पाया? बिकॉज सारे लोगों की कॉमन आइडेंटिटीज थी, कॉमन हिस्ट्री थी, कॉमन स्ट्रगल था ना। क्या पीपल क्या चाहते थे? जो फ्रेंच के लोग थे, व्हाट वर दे डिमांडिंग? दे जस्ट वांटेड, दे डिमांडेड अबोलिशन ऑफ मोनार्की एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। वो ये कह रहे थे कि अब हमको राजा नहीं चाहिए, प्लीज ये राजा वाजा का सिस्टम हटाइए, अब हमको कोई मोनार्की नहीं चाहिए, अब हमको एक गवर्नमेंट चाहिए जो हमारे लिए काम करे और हम उसको इलेक्ट करें, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होना चाहिए जो हमारे लिए काम करेंगे, हम उनको इलेक्ट करेंगे। सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेवोल्यूशन चलाया। व्हाई डिड दे फाइट? उनको चाहिए था कि डेमोक्रेसी लेकर आई जाए और उनको मोनार्की से फ्रीडम चाहिए था। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ था? क्योंकि एक नेशन स्टेट बनाने के लिए वी रिक्वायर दीज थिंग्स, तो उसके लिए कुछ मेजर्स लिए गए थे। सम मेजर्स वर टेकन। द फर्स्ट मेजर वाज a state general was elected and renamed as National Assembly. It means कि एक स्टेट जनरल बनाया गया और उसको क्या नाम दिया गया? उसको दोबारा से इलेक्ट की गई और इट वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। अब उसको क्या नाम दिया गया था? नेशनल असेंबली दे दिया गया था। फर्स्ट एस्टेट के लोग होंगे, सेकेंड एस्टेट के लोग होंगे, थर्ड एस्टेट के लोग होंगे, नो, अब उसको इलेक्ट करके इट वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। The second is the idea of la patrie and les citoyens. La patrie means the fatherland and les citoyens means citizens. तो अब क्या था? अब एक ला पैट्री और ले सिटोयन ऑफ सिटीजन्स, इन सबका आइडिया को इनिशिएट किया गया। थर्ड, द न्यू फ्रेंच फ्लैग, नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया और जो आपका रॉयल फ्लैग था उसको रिप्लेस कर दिया गया। न्यू हिम्स वर कंपोज, नए नए हिम्स बनाए गए, नई नई ओथ्स ली गई और मार्टायर्स जितने थे उनके लिए कमेमोरेशन रखा गया, उनके लिए प्रेयर की गई। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? ये सारे स्टेप्स इसलिए लिए जा रहे थे ताकि हम क्या बना सके? एक नेशन स्टेट बना सके। नेक्स्ट स्टेप वाज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जैसे हमारा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, अब वैसा रखा गया। अब कोई राजा वाजा नहीं था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाया गया। नाउ नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स। क्या था? अलग अलग जगह जाते थे, सबका अलग अलग तरीके का तौलने का, मेजर करने का अलग अलग सिस्टम था, राइट? इसको क्या किया? यूनिफॉर्म किया गया, सब जगह एक जैसा मेजरमेंट चलाया गया, सब जगह एक जैसे वेट्स लिए गए। नहीं तो ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आती थी, लोग ट्रेड नहीं कर पाते थे क्योंकि वो जाते थे, पता चलता था यहाँ 250 ग्राम्स कुछ और है, थोड़ी दूरी पे जाते थे तो वहां 250 ग्राम्स कुछ और होता था, तो प्रॉब्लम आती थी, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा था, ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी। सो व्हाट हैपेंड देन? आपका यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स को लिया गया। अबॉलिश्ड कस्टम ड्यूटीज, जितनी भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी जो ट्रेडिंग में लगती थी, ट्रेड करते वक्त लगती थी, वो सारी खत्म की गई। दे वर अबॉलिश्ड। अबॉलिश्ड रीजनल डायलेक्ट्स। रीजनल मीन्स डिफरेंट प्लेसेस, डायलेक्ट्स मीन्स लैंग्वेज। आपके जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको अबॉलिश किया गया, उनको अबॉलिश कर दिया गया। देन यूनिफॉर्म लॉ, सबके लिए लॉज बराबर बना दिए गए, सारे सिटीजन्स। क्यों? कौन सा आइडिया आ गया था? द आइडिया ऑफ ले सिटोयन वाज टेकन। आइडिया ऑफ ले सिटोयन मींस अब सब सिटीजन थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, एक नागरिक कहलाए जा रहे थे, तो उनके लिए क्या किया गया? यूनिफॉर्म लॉज बना दिए गए कि अब कोई बड़ा छोटा सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि सबके लिए अलग अलग लॉज रहेंगे, यूनिफॉर्म लॉज को लिया गया। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, जैसे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है ऐसे ही फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। रीजन? क्योंकि हमारे को क्या चाहिए था? एक नेशन स्टेट चाहिए था और किसी भी नेशन स्टेट के लिए जरूरी है कि एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। सो द फ्रेंच वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज, किसी अदर लैंग्वेज को नहीं लिया गया। सो चिल्ड्रन, ये कुछ मेजर्स थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड पर्पस एंड यू हैव टू राइट इन दिस वे।
कि क्या क्या मेजर्स लिए गए इन ऑर्डर टू ब्रिंग कॉमन आइडेंटिटीज। एज आई हैव टोल्ड यू, किसी भी नेशन स्टेट्स के लिए जरूरी होता है कॉमन आइडेंटिटीज का होना. So children, these were some of the measures which were taken to bring the common identities among the people. अभी थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे, 9th क्लास के बारे में बात करेंगे. फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने बहुत बार ये वर्ड पढ़ा, रेवोल्यूशनरीज. रेवोल्यूशनरीज व्हाट डज एग्जैक्टली मीन? रेवोल्यूशनरी मतलब क्या है? रेवोल्यूशनरीज वर दोज पीपल हु वांटेड टू ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी, जो ये चाहते थे कि अब हमको चेंजेस लेकर आना है. ऐसे लोग जिनके अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग्स आ रही थी एंड दे वांटेड कि अब हमको मोनार्की सिस्टम खत्म करना है और हमको डेमोक्रेसी लेकर आना है. तो यही टॉपिक हमने यहाँ कवर करना है. एम ऑफ रेवोल्यूशनरीज, क्या एम था इनको? इनका जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इन लोगों को, यूरोप के जो लोग थे, इनको क्या करना था? लिबर्टी, फ्रीडम दिलवाना था. दे वांटेड टू लिबरेट. कहाँ, किससे? From despotism. What is the meaning of despotism? Despotism means rule of a one person. और rule of a one person means जहाँ पर एक व्यक्ति का शासन रहता है, means monarchy. रेवोल्यूशनरीज कौन थे? जो लोगों को फ्रीडम दिलाना चाह रहे थे. किस चीज से? डेस्पोटिज्म से. अब हमको याद फिर से करना पड़ेगा. हमने देखा था बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए थे, जिनमें से फेमस पॉलिटिकल क्लब निकल के आया था हमारा जैकोबिन क्लब. यहाँ हमारे जैकोबिन क्लब में स्कूल के स्टूडेंट्स भी थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी थे. इन सब ने मिलकर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, रेवोल्यूशन चलाया, क्लब्स बनाए. क्यों बनाए? जस्ट टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. नॉट ओनली स्टूडेंट्स, आप देखो हमारी जो फ्रेंच आर्मीज थी, जगह जगह वो लोग गए, फॉरेन लैंड्स पे विजिट किया. व्हाई? जस्ट टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. सो चिल्ड्रन, पीपल ऑफ फ्रांस, दे वांटेड नाउ कि अब पूरी तरीके से भाई ये मोनार्की को ना खत्म कर देना चाहिए, अब हमको डेमोक्रेसी चाहिए. उनकी लड़ाई ये थी. इफ यू रिमेम्बर चिल्ड्रन, हमने जो अपना 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, हमारा जो चैप्टर एंड हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट. कि नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू. सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट हिम कि कौन थे ये नेपोलियन बोनापार्ट जो एकदम से सडन आ गए थे. हमको मालूम था क्लैशेस चल रहे थे, राइट? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने आके सारे वहां के फ्रांस के लोगों को, अदर कंट्रीज जो थी, जो अटैक कर रही थी, लड़ाइयां कर रही थी, उनसे बचाया. तो लोगों को लगा कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट आ गए हैं, अब ये हमारे को संभालेंगे एंड ही इज गोइंग टू वर्क फॉर अस. बट चिल्ड्रन, क्या हुआ? नेपोलियन कुछ अच्छी चीजें भी लेकर आए और कुछ बुरी चीजें भी कर दी उन्होंने. एक्चुअली जो अच्छी चीजें लेकर आई थी ना, जिस तरीके से उन्होंने वो की, द वे ही डिड ऑल दोज गुड थिंग्स, वो लोगों को पसंद नहीं आया. शुरू में तो लोग बहुत खुश हुए, वाओ नेपोलियन बोनापार्ट आ गए, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए. लेकिन जो उन्होंने किया, जिस तरीके से किया, वो सब कुछ उल्टा पड़ गया. उन्होंने उनको नापसंद करना शुरू कर दिया. Now children, नेपोलियन बोनापार्ट की अगर हम बात करें, he was a military leader. This we studied in 9th class chapter also. military leader, वो एक military leader थे. उन्होंने क्या किया? जैसे ही वो आए, डेमोक्रेसी को खत्म करके वापस से क्या स्टार्ट कर दिया? He reestablished monarchy. And the most important thing जो अभी मैंने आपको बताई कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें की थी, जिसकी वजह से लोगों ने उनको बहुत पसंद किया था. एंड वो जो चीजें की गई थी, उनको बोला जाता है, उनको पूरा एक कंपाइल्ड फॉर्म में बोला जाएगा सिविल कोड 1804, which is also known as Napoleonic Code. The most important 1 mark question for your board exams over here. So नेपोलियनिक कोड क्या था? नेपोलियन ने ऐसा क्या किया था नेपोलियनिक कोड के में जो लोग इतना खुश थे उनसे? लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये हमारे लिए कुछ अच्छा करने आए हैं और अच्छा करेंगे. तो वो क्या चीजें थी? लेट्स स्टडी अबाउट इट. तो पहला तो नेपोलियन ने क्या किया, जितने भी प्रिविलेजेस दिए जाते थे लोगों को बर्थ के बेसिस पे, लाइक राजा का बेटे को अलग तरीके से प्रिविलेजेस मिलते थे, एक गरीब को अलग से मिलते थे. तो इस तरीके का उन्होंने जो प्रिविलेजेस, लाइक राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये एक प्रिविलेज है. तो इन सब चीजों को क्या किया नेपोलियन ने? खत्म कर दिया. He said, now no privileges will be
given anymore now. Now next, equality before law. जाहिर सी बात है, अभी मैंने बोला उन्होंने सारे प्रिविलेजेस खत्म कर दिए थे। अब उन लोगों ने क्या किया, नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने लॉज बनाए जो सबके लिए बराबर थे, whether you are rich, पुअर, मेन, विमेन, अब लॉज के आगे सब इक्वल थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी। अब तो राइट टू प्रॉपर्टी भी मिलने लगा, राइट टू प्रॉपर्टी भी स्टार्ट कर दिया, न्यू लॉ आ गया, सबको हक था प्रॉपर्टी के ऊपर, बट नॉट फॉर विमेन। स्टिल विमेन के लिए अभी कुछ नहीं किया गया था। नाउ नेक्स्ट, अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया गया, जो लोगों से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे उन सबको खत्म कर दिया गया। इवन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव, क्योंकि नेपोलियन ने करेंसीज जो थी अलग अलग जगह पे, थोड़ी दूर जाते थे, थोड़े अलग शहर में जाते थे, दूसरी करेंसी होती थी, अलग शहर में जाते थे, अलग करेंसी होती थी। उसकी वजह से क्या होता था, लोग ट्रेडिंग नहीं करते थे, ट्रेडिंग नहीं होती थी तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा कैसे इंप्रूव होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे इंप्रूव हुआ, क्योंकि हमारे लिए नेपोलियन हमें एक और चीज करी थी, कॉमन नेशनल करेंसीज कर दी थी, कि कॉमन करेंसी होने से क्या हुआ, एक्सचेंज जो उनको करना पड़ा था जगह जगह जाके, वो अब नहीं करना पड़ रहा था। तो अब लोगों के लिए इजी हो गया था एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना चीजों को, ट्रेडिंग बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा वैसे वैसे कम्युनिकेशन सिस्टम भी बढ़ता चला गया। तो ये सारी चीजें देखिए, आपको लग रहा होगा देख के कि नेपोलियन बहुत कुछ अच्छा कर रहा था, लोग बहुत खुश हो रहे थे। और उन्होंने क्या किया देखते हैं, उन्होंने सारे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया, सारे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए, जितने भी एसोसिएशंस फॉर्म होते थे, म्यूचुअल ग्रुप्स फॉर्म होते थे, उन सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स। सी अभी जस्ट हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि क्या होता था कि पता चला हम एक शहर में है, वहां मेजर सिस्टम अलग है, दूसरे शहर में जाते थे वहां अलग होता था, तो उससे हमारी ट्रेडिंग भी नहीं होती थी, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होता था। जब ये दोनों नहीं थे तो कम्युनिकेशन भी नहीं था। जैसे ही हमारे यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स हो गए, हमारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने लगा, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ने लगा, ये सारी चीजें होती चली गई और इम्प्रूवमेंट होता चला गया। लोग बड़े खुश रहने लगे हमारे नेपोलियन से ना। नेपोलियन ने क्या किया, सारे ट्रेड बैरियर हटा दिए भाई, एक शहर से दूसरे जाने में जो टैक्सेस लगते थे, ट्रेड बैरियर्स जितने थे, सबको खत्म कर दिया। अब लोगों के लिए आसान था कि वो इजीली एक शहर से दूसरी शहर जा सकते थे। अबॉलिश सर्वडम। चिल्ड्रन, सर्वडम मींस बॉन्डेज लेबर। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो इट मींस जो बंधुआ मजदूरी होती है। बंधुआ मजदूरी मींस जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया जाता है कि भाई आप इतने समय के लिए हमारे लिए काम करने वाले हैं, तो लोगों को मजबूर किया जाता था कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें और उतने समय के लिए उनके लिए काम करना ही पड़ेगा। तो ये सिस्टम भी नेपोलियन ने खत्म कर दिया। चिल्ड्रन, नेपोलियन ये सारी चीजें कर रहे थे, लोग बड़े खुश हो रहे थे। जो लोकल पीपल थे ना, उनका रिएक्शन जो था ना, बड़े खुश थे वो कि नेपोलियन इतना सब कुछ कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया, यहाँ पर थोड़ा सा नेपोलियन ने अपनी तानाशाही दिखा दी। जिस तरीके से उन्होंने किया, तो वो जो सारी लोगों की खुशियां है ना, वो सारी खत्म हो गई। अब नेपोलियन को लोग नापसंद करने लगे थे। नापसंद करने के लिए क्या रीजंस थे? नापसंद करने के लिए देयर वर फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट, उन्होंने क्या किया, ट्रेड बैरियर तो हटा दिए, लेकिन टैक्सेस को बढ़ा दिया। ऑलरेडी लोगों के पास पैसा नहीं था, राइट, देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ फूड, बहुत ज्यादा स्कार्सिटी चल रही थी, लोगों के पास पैसा नहीं होता था, ऊपर से उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए थे। सेकंड, सेंसरशिप मतलब ये होता है कि मैंने जो बोला वही होगा, आप आवाज नहीं उठा सकते। अगर जो कुछ भी नेपोलियन कर रहे थे, किसी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसको उठाने नहीं दी जाती थी। सेंसरशिप लगा दिया था पूरी तरीके से, सारी चीजें बंद थी, आप आवाज नहीं उठा सकते। तो लोगों को ये भी पसंद नहीं आया, भाई हम पे सेंसरशिप क्यों लगा रखी है, कोई आर्टिकल नहीं लिख सकता, कोई न्यूज़पेपर में नहीं आ सकता, कोई आवाज नहीं उठा सकता, कोई रिपोर्ट नहीं लिख सकता। ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है सेंसरशिप में। Now third forced people to join army। अब लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा कि नहीं, अब हमको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। एक्चुअली जो लोग वर्कर्स थे उनको भी फोर्स किया जा रहा था कि नहीं, अब आप आर्मी ज्वाइन करोगे।
आर्मी ज्वाइन क्यों करना है? ऑफ कोर्स आगे के वॉर्स के लिए, लड़ाई के लिए। तो लोग नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनको फोर्सफुली करवाया जा रहा था, तो लोगों को ये भी पसंद नहीं आया। नेक्स्ट रीजन, उन्होंने सारी चीजें अच्छी की। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ मेन के लिए था, विमेन के लिए नहीं था। तो ऑफ कोर्स विमेन उनके अगेंस्ट थी कि इन्होंने भी हमारे लिए नहीं सोचा। अगर आपको याद हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब हमने विमेन के बारे में पढ़ा था, विमेन वाला टॉपिक पढ़ा था, तब उसमें आपने देखा विमेन को कितनी लड़ाइयां लड़ने लगी, जबकि वो सारे रेवोल्यूशंस में पार्टिसिपेट करती थी, राइट। तो विमेन यहाँ पर वो भी नाखुश थी। उनको एक उम्मीद थी कि नेपोलियन अगर आए हैं वो भी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ अच्छा नहीं किया, राइट। तो ये सारी चीजें थी। तो नेपोलियन अच्छे भी थे, उन्होंने अच्छी चीजें भी की, और नेपोलियन थोड़े से बुरे भी हुए, क्योंकि जिस तरीके से द वे ही परफॉर्म्ड, द वे ही डिड ऑल द थिंग्स, पीपल डिडंट लाइक इट। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड please do not forget to subscribe my channel, and children, previous video की link मेरे description box में है, आप उसको देख सकते हैं। definitely it is going to help, because मैंने कुछ tips and tricks आपको बताने की कोशिश की है कि हिस्ट्री को आप कैसे इजी सब्जेक्ट बनाएं, क्योंकि हिस्ट्री से सभी बच्चों को डर लगता है, डेट्स याद नहीं होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप उस लिंक से मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। एंड कोई भी डाउट है, आपको नहीं समझ में आया है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी और कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दूं। एंड डू नॉट फॉरगेट to stay tuned with my channel. Hopefully I'll bring lots of stories for you, interesting stories for you, and we will enjoy together. Bye, take care.